Students, we discussed about the 10th class part 1 resource of the development and equity. The social subject very most important part 1 is a compulsory covered in the board examinations. Part 1 में सोशल सब्जेक्ट में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लिए अपन डिस्कशन कर रहे हैं पार्ट वन में सोशल सब्जेक्ट में डिस्कशन करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट एंड माइग्रेशन व्हाट अबाउट द सेटलमेंट माइग्रेशन वी हैव टू गो 3 type of categories people there, one very rich and second middle class and third poor people. We want going to settlement of migration mean place to going to one place to another place for living purpose. एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए अपन यहाँ थोड़ा नौकरी नहीं मिल रही, रोजगारी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरे प्लेसेस को जाना. दैट इज टाइम टू हाउ मेनी टाइप ऑफ सेटलमेंट्स माइग्रेशन देयर. माइग्रेशन टू प्लेस, माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा रहे हैं, अपन माइग्रेट कर रहे हैं. माइग्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? माइग्रेट करने में इम्पोर्टेंट, सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, सपोज अपने तेलंगाना स्टेट को दूसरे स्टेट वाले आ रहे, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहे. व्हाट अबाउट पर्पस? वी वांट इकोनॉमिकली and employment purpose to going to settlement of migration. Settlement of migration mean we going to one place to other place. With districts change, districts can be going to one district to other district, and state also going to one state to other state, and country also other countries. Suppose Indians also going to Canada, Russia, all countries there. For Telangana peoples we going to all state, Tamil Nadu, Kerala, other states we going on. The other state people since coming in India, Telangana only. Okay, right. इसमें क्या very most important point we have going to migration to person to one place to another place. Mean like that one district to other districts, one state to other state, one country to other country. Okay, thank you. Next is a population. Settlement is there. So population is growing. The population is one thing we are thinking about everybody. Population is one asset. Asset mean एक property. Population is एक property है. Population is किस लिए property है? Population is like that human sources. Human sources mean आप human sources, humans population बहुत सारा है. Population is more there, but you utilize it properly. आपने बात वो इंडिया में, चाइना में बहुत सारा पॉपुलेशन है, बट इस पॉपुलेशन वी कैन यूज द प्रॉपरली, वी कैन टेक द गुड प्रॉफिट, गुड आउटपुट देयर, गुड आउटपुट. अपने पास पॉपुलेशन रहना बहुत अच्छी बात है. वो पॉपुलेशन को करेक्ट यूटिलाइज करना, वो इज अ सक्सेसफुल कंट्रीज. मीन द पॉपुलेशन कैन इज सक्सेसफुल कंट्रीज. द पॉपुलेशन होते जब अपने एक बड़ा क्राइटेरिया प्रॉब्लम आता. व्हाट इज द क्राइटेरिया प्रॉब्लम? दिस फूड प्रॉब्लम. पॉपुलेशन बहुत सारा है बोलते वी हैड सफिशिएंट फूड इज मस्ट बी शुड. पॉपुलेशन ज़्यादा है बोलते अपने क्या होता, बहुत सारे पब्लिक है अपने इंडिया में, बहुत पॉपुलेशन है. वो पॉपुलेशन को करेक्ट फूड भी होना कंपलसरी, नेसेसरी इज फूड इज मस्ट कंपलसरी ना. वो फूड के लिए फूड सिक्योरिटी मीन the state government and central government can provide the schemes for food safety, food security schemes also we can produce. Okay, अपने को पॉपुलेशन कितना ज़्यादा रहे तो भी नो प्रॉब्लम. वो पॉपुलेशन की करेक्ट वे में अपन टेक्नोलॉजी, ये सोर्सेस, पॉपुलेशन को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ह्यूमन सोर्सेस. पॉपुलेशन इज ए ह्यूमन सोर्सेस. मेन 3 सोर्सेस रहते हैं, नेचुरल सोर्सेस and human sources and technology sources. We had what about mainly 2 sources we can be economically development. अपन जैसे कोसी कंट्री भी
डेवलपमेंट होने के लिए पॉपुलेशन इज मस्ट शुड, वो पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन सोर्सेस है. सपोज वी हैव नेचुरली गैस, पेट्रोलियम, दैट इज ऑल नेचुरल सोर्सेस. Population is a human sources. Okay, next, food security. Food security is a compulsory for produce the state government and central government. ये population कितना है बोलते से important कितना है कि just we have one thinking as population is sufficient, food is be necessary. Okay, next, idea of development. Idea of development. What is the idea of development? We have the population is there, sufficient population is there. That population can utilized in idea and development. The idea is that intellectually we have to simply be intellectually we developing. The natural developing olden days we have we have to long struggling there. At the time of idea of development is we short timely we can developing that is a short time can developing, that is a idea of development. अपन पूर्व लॉस्ट सीन्स हिस्ट्री में देख ले तो एग्रीकल्चर कैसा करते थे अपन, सिंपली वे हैव टू बाइल बंडी से करना, नेचुरली वे ट्रेडिशनल करते थे एग्रीकल्चर. एट प्रेजेंट ट्रैक्टर्स टेक्नोलॉजी है, नो शॉर्ट पीरियड में क्रॉप आउटपुट ऑफ क्रॉप कंपलसरी वी हैज गेन. आउटपुट ऑफ क्रॉप अपने को आ जा रहा, प्रॉफिट आ जा रहा, अपने को जो माल हो जा रहा कंपलसरी. वी हैव टू डेवलपिंग द इंडिया वाई द टेक्नोलॉजी and human sources is must be seen. Next, production and employment. Production is mean we have to, production is industries. Industries, two type of industries, large industry and small industry. The two type of industries for giving for employment and production also giving for economically help of the country. इंडिया को हेल्प ऑफ द कंट्री, इंडिया को हेल्प ऑफ द कंट्री हो जा रहा है. फिर नेक्स्ट वी थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड एग्रीकल्चर आल्सो मस्ट बी शुड इम्पॉर्टेंट. द एग्जांपल केस स्टडी इज ए रामपुर ऑफ विलेज इकोनॉमिकली. ये रामपुर विलेज वी हैव यू ट्रांसपोर्टिंग एंड वेदर crop changes, potato crop, wheat, jawar, that is different type of crops we can take in. That crops will be more benefited for the village peoples. Okay, next has a globalizations. Next, what is about globalization? अपने के पास एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन सोर्सेस है, सब रहने पर ग्लोबलाइजेशन किस लिए मीन वी हैव टू पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए अपन डेवलप होना चाहिए. तो फुल डेवलप हो गए, फुल पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से डिसीजेस आ गए, ह्यूमन सोर्सेस लॉस हो जा रहे, लोग मर जा रहे, मीन ह्यूमन सोर्सेस लॉस, ग्लोबलाइजेशन हो रहा. वो प्रॉब्लम्स नहीं है सर का. अपन प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनिंग डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सस्टेनिंग डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी. अपने पास देखिए से एक बार अच्छा सुनिए प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स. रामपुर ऑफ विलेज में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर सोर्सेस है, इंडिया में डेवलपमेंट करने के लिए आइडियाज़ एंड डेवलपमेंटिंग है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट सोर्सेस है. उसके बाद अपने ग्लोबलाइजेशन हो रहा, वी सेव द एनवायरनमेंट, वी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी. अब जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, दैट ऑल सेक्टर वी कैन डेवलपिंग, दैट सेम टाइम वी कैन प्रोटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किस लिए करना, इंडियन रिलीफ फ्यूचर में आप देखिए उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स रहता, ओडिशा लैंड, राजस्थान लैंड्स, डेजर्ट लैंड्स एंड वाटर फ्लो लैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स रहता. बोल तो आप सोचिए एक बार, वी कैन थिंकिंग ऑफ अबाउट द इंडिया हैव द फ्यूचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूचर्स ऑफ द इंडिया. अपने इंडिया में देखो रेती भरा रहेगा, पानी से भरा रहेगा, जंगल फॉरेस्ट एरिया रहेगा, with different type of locality, different type of the nature, different type of the climate also there. We have the climate of India. The climate can be influenced to economically. Why are we influencing the climate? We can influence in the rivers and water sources. The water sources can be utilized for the villages economical. How to can be the water can utilize for the
villagers for agriculture purpose. Groundwater also we can using for the people's also drinking water and agriculture water. They have to climate of the India, climate of different type of the climate we be supporting from the agriculture crop changes. That is climate is most important. And relief feature we have a different type of the relief. अपने इंडिया में देखिए आप एवरीबडी स्टूडेंट्स वी कैन ऑब्जर्व दैट इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ के फीचर्स है. रेती से भरा प्लेस है, पानी वाला है, फॉरेस्ट वाला है, वेदर बहुत सारा धूप आने वाला है, बारिश आने वाला है, रिवर्स है, लेक्स है, क्लाइमेट चेंजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेस है. ये सोर्सेस 99% पीपल्स यूज़ फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस and climate person and globalization purpose and sustainable development with equity purpose है. ये फर्स्ट पार्ट में इम्पॉर्टेंट आप देखिए ये पूरे लेसन्स देट ऑल लेसन्स देर फर्स्ट पार्ट के लेसन्स है. ये लेसन्स को कनेक्टिविटी बता रहा हूँ आपको. देखिए एक बार कनेक्टिविटी द सेटलमेंट ऑफ माइग्रेशन करने से क्या होता, पॉपुलेशन बढ़ जाता. पॉपुलेशन बढ़े तो पॉपुलेशन को करेक्ट यूटिलाइज फूड चाहिए पॉपुलेशन को. ये पॉपुलेशन को फूड होना बोलते क्या है, कम्प्लीटली आइडिया ऑफ डेवलपमेंट करने का है. ये आइडिया ऑफ डेवलपमेंट करने से क्या होता, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाते, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होते. प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज रहते पर भी अपने को एग्रीकल्चर के डिपेंड होना चाहिए. कई इसलिए खाना चाहिए ना एग्रीकल्चर लिए. खाना विलेज रामपुर विलेज का भी यही है. इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एग्रीकल्चर का वेदर से क्लाइमेट से वे एग्रीकल्चर क्रॉप चेंज करने का है. क्रॉप बोल तो कौन सा क्रॉप डालने से ज़्यादा बेनिफिट होएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, वो क्रॉप टाइम से डालने का है. तो ग्लोबलाइजेशन के लिए भी अपने को एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंडिया रिलीफ फ्यूचर्स बोलते हो. अपने को इंडिया में ढेर सारे एरियाज है, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश, यूपी, हर एक राष्ट्र है. वो हर एक राष्ट्र में हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सोर्सेस. थोड़े प्लेसेस में वाटर सोर्सेस भी नहीं रहता मगर वहाँ थोड़ा मोड़ा क्रॉप्स पर फूड पर्पस वह क्रॉप भी निकाल रहे. उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट अपने डिफरेंट ये क्लाइमेट अपने देखे हिमालयस का रिवर्स आना, हिमालयस वो क्लाइमेट ऑफ चेंजेस पूरे अपने इंडिया में क्लाइमेट ऑफ चेंजेस होते हैं. वो क्लाइमेट चेंजेस से अपने को रिवर्स एंड वाटर सोर्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवर्स एंड वाटर सोर्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवर्स एंड वाटर सोर्सेस इम्पॉर्टेंट. उसके बाद अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेन हम सब डेवलप होना, इंडस्ट्री डेवलप होना, इकोनॉमिकली डेवलप होना, ये प्रोडक्शन आना, सब अच्छा रहना. उसके साथ अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द इक्विटी मीन एनवायरनमेंट को भी अपन प्रोटेक्ट करना, अपन ठीक अपन अच्छा रहना, सब पब्लिक सब अच्छी रहना बोल तो मेनली एनवायरनमेंट अच्छा रहना. एनवायरनमेंट में मेनली पोल्यूशंस रहेगा, वो पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीनरी डेवलप करना. ओके, थैंक यू.